ओके, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज में हमने बात की थी शील्डिंग इफेक्ट की, एटॉमिक साइज की। आज तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, the minimum amount of energy required to remove outermost electron from an isolated atom. What is ionization energy? It is the amount of energy we require. For what? We require this energy to remove outermost electron. From whom? From isolated atom. यहां पर हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड एटम की। क्यों हम यहाँ पर बात आइसोलेटेड एटम की करते हैं? यानी यहाँ पर हम जरूर बताते हैं कि हमने आइसोलेटेड एटम से निकालना है। आइसोलेटेड एटम इस वजह से हम कहते हैं कि जब आप सॉलिड में एटम सारे इकट्ठे होते हैं, आप इसको हीट दे दोगे तो लिक्विड में चली जाएगी। लिक्विड में भी उनके दरमियान कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगा, आप उसको हीट दे दोगे तो वो गैसियस स्टेट में जाएगा, और गैसियस स्टेट में एटम आइसोलेट होते हैं। और जब आप किसी एटम को गैसियस स्टेट में एनर्जी प्रोवाइड करोगे, then this energy will remove the outermost electron, and this energy is called ionization energy. That is why we use isolated atom. That is why we use isolated atom. So, ionization energy is the minimum amount of energy required to remove the outermost electron from isolated atom. And this amount of energy varies from atom to atom, from element to element, because atoms of different elements are attracted by different strength of nuclear attractive forces. That is why we say different element, the atom of different element have different ionization energy, because the nuclear attractive force on the outer electron of different element are different. So if the nuclear attractive force on outer electron are greater, so its removal become difficult. So large amount of energy will be required. If the nuclear attractive force on the outer electron are weak, so it is easy to remove such type of electron, and hence less amount of energy will be required for its removal. Now we discuss trends in ionization energy across the period and down the group. Across the period, as we move from left to right, across period mean moving from left to right. जब भी बात across the period की आएगी तो उससे हमारी मुराद ये होगी कि from moving from left to right, ionization energy increases. It means that if we move from left to right, from element to element, the ionization energy increases. If one element have ionization energy 1, the second will be 2, third, 4, and so on. Why this happened? Why this happened? What are the reason behind it? तो reason लिखा हुआ है कि across the period nuclear charge increases, so attractive force of nucleus on outer electron increases. That is, as we move from lithium towards the beryllium and so on up to neon in period, or from sodium to argon in period, the nuclear charge on outer electron increases. क्योंकि ये बात हम बार बार कह चुके हैं कि हम जब पीरियड में जाते हैं तो शेल ऐड नहीं हो रहा है, आउटर इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब है आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ नहीं रही है, लेकिन साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की तादाद बढ़ती जा रही है। प्रोटॉनों की तादाद का बढ़ना न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कर ले, लिथियम
का आखिरी इलेक्ट्रॉन 2s1 है, यानी दूसरे शेल में है, और उसमें टोटल प्रोटॉन 3 है, तो पॉजिटिव चार्ज 3 है। बेरिलियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन भी सेकंड शेल में है 2s2, लेकिन वहां पर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो है +4। अगर आप बोरान पे जाओगे तो बोरान का आखिरी इलेक्ट्रॉन भी सेकंड शेल में जा रहा है 2s2 2p1, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज 5 है। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा तो आखिर इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का कमांड होगा, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा, और उस स्ट्रांग फोर्स से इलेक्ट्रॉन को निकालना, बाहर भेजना मुश्किल होगा। सो वी नीड लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट इज व्हाई वी से that across the period ionization energy increases. Now we discuss variation down the group. Down the group the ionization energy decreases. Why? The reason लिखी है, because down the group shielding effect increases. Because down the group shielding effect increases. एक मिनट, एक दो बंदे आ रहे हैं, इनको मैं इन कर दूं। बासिम के साथ आज क्या प्रॉब्लम चल रहा है? आया नेट का इशू होगा। आ जाओ, कोई नेट का इशू होगा, कोई मसला नहीं। आया down the group shielding effect increases. When shielding effect increases, it means that number of shield increases, number of inner electron increases. When number of inner electron increases or number of shell increases, it will result in decrease in nuclear attractive forces. अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगी। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होना इस बात की निशानदही है कि न्यूक्लियर का अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर होता जाएगा, यानी जितना डाल मजबूत होगा इतनी तलवार की जरब से आप बचे रहेंगे। तो जितना शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का गुस्सा, न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी। सो इट विल बी इजी टू रिमूव सच टाइप ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन। We need less amount of energy, which means that ionization energy decreases down the group. तो ये हम बात कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी की, कि आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है, जबकि डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होती है। दोनों की रीजन भी दिए हैं, आपको पेपर में क्वेश्चन भी इस तरीके से मिलेगा कि आप आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करो और उसकी ट्रेंड्स लिखो रीजन के साथ। तो आपने रीजन, हर एक का ट्रेंड्स का मैंने रीजन भी दिया हुआ है। ये आप इस टेबल को देख लें। आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी देखो डिक्रीज हो रही है 13.5, यानी आप हाइड्रोजन से लेकर नीचे आ जाए सीजियम तक तो 13 से ही चली जाती है 3.89 पे। लेकिन अगर आप लिथियम से जाए नियान की तरफ तो ये 5.39 से 21.58 पे जा रही है, यानी 21.58 पे अक्रॉस द पीरियड अगर हम देखेंगे तो ये इंक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप आप किसी ग्रुप में भी देख लो तो ये डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, वो नाइट्रोजन के खानदान का है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की, इनके आयनाइजेशन एनर्जी अपने आगे वाले से ज्यादा है, होने ये कम चाहिए। ये एक्सेप्शनल केसेस है, ये हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा होता है, इनकी स्टेबिलिटी की वजह से। अच्छा, एक मिनट, ये एक वीडियो आपको दिखानी है। अच्छा, एक मिनट में आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, एक वीडियो है मेरे पास। सर इसको किसी और चीज से ओपन करें। एक मिनट, आयनाइजेशन एनर्जी पे एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज लिसन, वेट अ मिनट।
ये आयनाइजेशन एनर्जी अगर आप इसको देखेंगे तो ये सोडियम का एटम है और ये इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखो, दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसको किक आउट करना है, इसको निकालना है, तो इसके लिए जो एनर्जी दरकार होगी, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन है और इसको निकालने के लिए 496 किलो जूल पर मोल चाहिए, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉनों, सोडियम के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूं, when you remove first electron from the outermost shell, the energy required will be called first ionization energy। अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, उसके बाद आपने दूसरा निकालना है, तो उसको निकालने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए, that will be called second ionization energy। अगर आपने फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, that will be called third ionization energy। और एक बात गौर से सुनना है, ये फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी लिखवा दूंगा कि अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आप किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, उसको जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आप दूसरा निकाल रहे हो, तो उसको कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद एटम का साइज मजीद छोटा हो रहा है, न्यूक्लियस की पावर मजीद बढ़ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो फिर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कमांड है, वो मजीद बढ़ रहा है, तो आपको फिर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मजीद एनर्जी चाहिए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी is always greater than first ionization energy। This is called first ionization energy। आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज नहीं, ये माइनस आपको बता रहा है कि माइनस एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये देखो, ये क्योंकि आखिरी शिल, अब ये वाला शिल आखिरी हो गया, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब देख लो, पहले आयनाइजेशन एनर्जी में 496 किलो जूल चाहिए था, अब दूसरे में 4563 किलो जूल चाहिए। अंदाजा लगाओ, पहली ज्यादा हो गई कि दूसरी? दूसरी वाली। दूसरी। हम कहते हैं कि the second ionization energy is greater than the first ionization energy because after the removal of first electron, the size of the nuclear attractive force on the remaining electron increases। सिंपल सी बात है, 10 बंदे हैं, उसने 10 को पकड़ा हुआ है, अब एक चला गया, अब 10 बंदों ने 9 बंदों को पकड़ा हुआ है। तो मुझे बताए कि पहले केस में जो पकड़ की कुव्वत है वो ज्यादा होगी या दूसरे केस में? सर दूसरे केस में। यानी पहले 10 बंदों ने 10 को पकड़ा हुआ था, हर बंदे को अपने आप चढ़ाने के लिए एक बंदे की कुव्वत से छुटकारा हासिल करना था। अब 10 बंदों ने 9 को पकड़ा है, तो अब उस हर एक बंदे के ऊपर जो पकड़ की कुव्वत होगी वो ज्यादा होगी। एक और चला गया, अब 10 बंदों ने 8 को पकड़ा है, तो अब मजीद फोर्स टाइट होगी। यही केस है कि when electron is removed from outermost shell, the nuclear attractive force and the remaining electron increases, so large amount of energy will be required for the second removal। और सेकंड के बाद फिर थर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबिलिटी की तरफ जाएगी। अच्छा, एक मिनट, तो ये आपका, ये इसको कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब आप पीरियोडिक ट्रेंड दोबारा देख लो, ये ग्रुप और पीरियड दो आपको नजर आ रहे हैं। ये आप ग्रुप में देख ले जरा, ये आप ग्रुप में देख रहे, ग्रुप में हम देख रहे हैं, ये पहले का सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन का,
फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, और लास्ट में सीजियम का, फ्रांशियम का, सीजियम का, और लास्ट में फ्रांशियम का। तो ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। अब क्रॉस द पीरियड देख रहे हैं, ये देख लो, देखो ये क्रॉस द पीरियड बढ़ रही है। आप देखो यहाँ पर ये थोड़ा नॉर्मल है, ये इससे कम होना चाहिए था। ये मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन के सारे खानदान में ये मसला है, और वो उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से है। यानी नाइट्रोजन का जो खानदान है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है, वो आपके कोर्स से थोड़ा सा बाहर है। एक्स्ट्रा स्टेबल इस वजह से है कि उनकी जो शेल्स है, आखिरी शेल है, वो हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। तो यही किस्सा है उसका, बाकी प्रिंट सेम है। बात यहां तक क्लियर हो गई? जी सर।